I owe that kind of explanation to you guys because it was my decision to put our friendship on social media, on my channel, and make you guys a part of it. You guys didn't choose it. I gave it to you on a platter and then I snatched it away. Hi guys, hello, hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. First of all, I'm really sorry पिछले last दो upload miss करने के लिए and for not also informing you guys where I was. I was down sick with some kind of stomach infection or food poisoning, I don't know what, but I've been on antibiotics and painkillers for days now and I'm feeling much better, and that is why I'm here filming this video because I just couldn't let this video go. I always do these kind of life update videos जो कि एक year के end में आते हैं. Majorly I wanted to do this video because I am in a place right now where I am okay being open and I'm okay being honest and I'm okay being vulnerable and I'm okay being judged about it. And I have a lot of questions. I put up a post on my Instagram recently and I'm gonna be creating this beautiful Christmas party. वैसे Christmas चला गया है, so I will call it a New Year NYE sort of a party look. I hope you guys are excited for some honesty after a really long time. Without any further ado, let's get started. Alright, okay ji, I don't even know where to begin with, but I'm really excited to end this year professionally and money wise, trip wise, shopping wise. जितना मैंने इस year में progress किया and जो मुझे मन किया मैंने किया, that was one side. But personal and health front पे especially मैंने और मेरी family ने जो feel किया, that was something very different. The word for today's video is keep cool. I need to be cool to answer all of these questions that you guys have sent me. I want to express myself in the best of my ability and I feel like जब tears बीच में आने लगते हैं, of course it's a vulnerable side of a creator, but it's not good जब वो हर time ही, you know, you become into this crybaby sort of person and I leave that part of me for my therapist. And बहुत सारे अलग अलग topics पे बहुत ही frequently asked question है. There was this one topic which you guys must have read in the title also, which I will be addressing finally because I am done hiding, I am done keeping it inside. I'm not that sort of person and I'm sure 2023 में आप लोगों ने सबने देखा होगा that I was pretty different. मैं बहुत surface level content बना रही थी in terms of like सिर्फ traveling का या shopping का and nothing else because I did not have anything to add to my personal life या आपके साथ खुल के कुछ शेयर कर पाऊँ. मैं बहुत ही ज़्यादा closed off हो गई थी and मैं ऐसे टाइप की इंसान ही हूँ यार. लाइक मेरे पे अगर कोई पाबंदी लगी हो या मैं अपने आप से बोलूँ कि कुछ चीज़ें शेयर करनी है, कुछ चीज़ें शेयर नहीं करनी है, तो मैं नहीं जी पाती. आई नो माई बाउंड्रीज कि कितना शेयर करना है, कितना नहीं करना है. आई एम नॉट एन ओवर शेयरर एनी मोर. ऑल्सो मैं ये प्रोडक्ट वाली वीडियो नहीं बनाने वाली बिकॉज वैन आई एम आंसरिंग पर्सनल क्वेश्चन एंड डीप क्वेश्चन, तो उस टाइम पे आई डोंट वांट टॉक अबाउट ओह दिस इज माई फेवरेट फाउंडेशन. सो अगर कोई मेकअप वाली साइड में एंड स्किन केयर वाली साइड में इंटरेस्टेड है बंदा, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना. आई विल लिंक देम. दीज विल बी अफिलिएट लिंक्स जिससे मुझे कुछ % मिलेगा इफ़ यू बाय थ्रू दीज लिंक्स. ओके, सो आई एम गोना एड्रेस समथिंग जो कि आप लोग मुझसे आई थिंक 2-2.5 साल से पूछते आ रहे हो एंड I have been very quiet about it. I've been very silent about it because of the sheer reason that 2 people were involved in it. And I feel like because I've made Anindita such a part of my channel, it is very stupid of me कि इन सालों के दौरान मैंने उसका नाम भी अपने चैनल पे इतने टाइम से नहीं लिया. And it feels very weird to say her name, but it is also very stupid that when you make ऑलमोस्ट एवरी व्लॉग एक बंदा बार बार आपके वीडियोस में या कंटेंट में आ रहा है, आपकी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है, आपकी पूरे सब्सक्राइबर, आपकी इंटरनेट वर्चुअल फैमिली क्वर्की स्क्वाड वाकिफ है उससे, एंड एकदम से एक दिन आप उसका नाम लेना बंद कर दो. एंड इसी से रिलेटेड आई हैव गॉट लाइक ओवर 50 क्वेश्चंस, लाइक 50+ क्वेश्चंस, एंड आई हैव टेकन ऑल दी स्क्रीनशॉट्स. सो ये क्वेश्चंस मुझे लाइक 50, 60, 100+ तब से आ रहे हैं जब से आई स्टॉप मेंशनिंग हर ऑन माई चैनल. वाई वी डोंट सी हर इन योर व्लॉग व्हेन यू शिफ्टेड, जब आपका हाउस गृह प्रवेश हुआ एंड ऑल ऑफ दैट. वाई वॉज शी नॉट देयर? बिकॉज शी वॉज लिटरली देयर इन एवरी achievement, in every low phase of my life, and she was there for me. She was truly there for me. We don't talk anymore and we are not friends anymore. She was my bestest of best friend at one point of time, but she's not my friend anymore, and that doesn't mean that she is my enemy. So I am addressing it here and I feel like ये closure is very important. I don't wish to talk about it in future and I don't want to talk for her. When we were friends or when we were best friends, we really lacked boundaries. Like from my end तो मैं यही बोलूँगी, मैं उसके लिए again नहीं बोलना चाहती. I lacked boundaries and I included her in
everything, mentally, emotionally, and you know that feeling of girl friendships when they hype you up, and it's a good feeling, and she was the perfect best friend for me, I will say that. But I also have to say that sometimes things don't work out, and with time people also change. She changed, I changed, I don't know who changed. The kind of person she is and whatever she added in my life, I will always be thankful to Chakro for it. एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट कि वो ज़िंदगी में खुश रहे, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे. आई जेन्युइनली एम सेइंग दैट. आई थिंक वी स्टॉप टॉकिंग इन जून ऑफ 2021 एंड अब 2024 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इतने सालों में आई नो देयर विल बी सम पीपल हु विल बी लाइक इतना टाइम क्या लग जाता है, इतना क्या होता है, मतलब शी इज़ स्टिल नॉट ओवर इट, शी इज़ ड्रैगिंग इट एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई नेवर गॉट टू से माई पीस, एंड आई वॉन्टेड टू से माई पीस वेन आई वॉज मेंटली रेडी टू टॉक अबाउट इट इन अ वेरी सेन मैनर, नॉट इन अ वेरी अग्रेसिव मैनर कि ये हुआ वो हुआ. आई एम अ लियो, आई कैन गेट ड्रामेटिक एंड यू नो अग्रेसिव वेरी क्विकली. दैट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, बट आई नेवर वॉन्ट इट टू हार्म समवन. अपने स्क्वाड को लगा दे किसी की तरफ हेट भेजने एंड कॉमेंट्स कराने, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट. If you care even 1% about my mental health or Chakro's mental health, I would just say, please don't pick sides. Please don't be like, we support this, we support that, because you guys don't know the whole thing. And even if you did, I don't want के लोगों का ऐसे बंटवारा जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता है वैसे हो जाए. I seriously don't want that. And one more thing that I would like to add to it is that I know कि इसके बाद we can get comments like, पैच अप करने का ट्राई कर लो, अब तो इतना टाइम हो गया, एंड यू नो आपकी दोस्ती इतनी गहरी थी एंड यू गाइज शुड जस्ट सॉर्ट इट आउट. एंड वी डिड ट्राई दैट व्हेन आई थिंक इस साल मेरी जब विजडम टूथ वाला सीन हुआ था. सो शी वॉज वेरी स्वीट टू आस्क मी अबाउट माई हेल्थ एंड एवरी थिंग. एंड या आई थिंक मार्च के अराउंड वी टॉक्ड अ लिटिल. बट यू नो गाइज, आई डोंट नो, आई ट्राइड, बट वो बात नहीं थी जो पहले. Like I genuinely, you know, gave her the place of my, like जो सगी बहन टाइप का वाइब होती है ना, like that. So and I'm not saying कि उसने मुझे वैसी नहीं दी, like I am not here to speak on her behalf, so मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. But I know whatever was between us, it was pure, it was true, it was not for social media. And I remember once I met My Happiness, and यू नो मेरे को, आई डोंट रिमेंबर आनंदिता ने बोला था या माय हैप्पीनेस ने बोला था, बट शी टोल्ड अस कि यू नो तुम जितना अपनी जिस स्पीड से सोशल मीडिया पे अपनी फ्रेंडशिप दिखा रहे हो ना, इट्स जस्ट वेरी स्कैरी टू इन्वॉल्व पीपल. एंड वॉट विल हैपन अगर तुम लोगों की किसी चीज़ पे कभी लड़ाई हो गई, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू गाइज टू मैनेज दैट एंड आंसर टू पीपल. एंड इट वॉज ब्लडी डैम टफ. And I feel like personally I went through a very bad time because I was the sort of person जो कुछ भी होता था लाइफ में आके कैमरे पे बक देती थी. And I had to stay quiet for such a long amount of time. I also made a promise to Chakro that I will not be talking about it and I will not be addressing the stuff that happened between us. So I'm not gonna do that. I just felt like मैंने इतना ज़्यादा आप लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया, तो एकदम से इस चीज़ को कट ऑफ करना और ना बताना इज़ वेरी टफ. एंड आई वॉज जस्ट लूजिंग माई सेल्फ इन द प्रोसेस. लाइक मैं एक चीज़ छुपा रही थी, फिर दूसरी चीज़ पे मेरे को मन नहीं कर रहा था शेयर करने का. एंड आप लोगों ने देखा होगा ये पूरे 2023 के व्लॉग्स में मैंने कुछ ज़्यादा अपना पर्सनल लाइफ का शेयर नहीं किया है. एंड दैट वॉज द रिपल इफेक्ट ऑफ नॉट शेयरिंग वन मेजर थिंग इन माई लाइफ. एंड अगर आप उस चीज़ में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, देन इट्स वेरी ईजी कि आप और चीज़ें भी शेयर ना करो. एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन. आई वॉन्ट टू be open to you guys and I want to make you guys a part of everything that is happening in my life. I owe that kind of explanation to you guys because it was my decision to put our friendship on social media, on my channel, and make you guys a part of it. You guys didn't choose it. I gave it to you on a platter and then I snatched it away because things were not right. And then I didn't even address it and I didn't even say ki why did I snatch it away. So I'm really sorry. I really want to apologize if you guys felt like आप मेरे से connected नहीं हो and क्या हो रहा है, she's being secretive, she's being, you know, closed off. It was not my intention. I was just trying to protect my mental health at that point of time. Honestly, I have taken therapy. Most of my sessions in 2021, 2022 and 2023 even have been about dealing with loss of a best friend. Oh God. But you know what? I really feel good. I truly feel good. Why? Because this was the major thing that I wanted to
let off my chest, you know. I just really wanted कि I should just talk about it and get over with it. I don't want to talk about it ever इसके बाद, because it is still something that is a void, you know. You can't fill it with another person. And to be honest with you guys, मैं उस चीज़ को fill करना भी नहीं चाहती. So as I was saying, जो उसकी place थी मेरी life में, I don't think कोई लड़की या लड़का ले सकता है, because she was really special. I miss auntie. I miss hanging out with their family. I miss Arsh. He was such a good friend, and I got to know कि वो बाहर चला गया अपनी higher studies के लिए, and I didn't get to say goodbye, which is fine. Obviously, it is something that I'm still grieving, but I'm grieving less each day. Sometimes friendship breakups can be harder than relationship breakup. To sum it up, I just want to say to you guys that just be respectful of her. You know, just cherish the moments that we have together. Our videos are still up on my channel, and if you miss us, I know a lot of you guys miss us, and मुझे वो questions भी आए हैं. So you can always watch those videos. I'm really proud of the content we did together. We did have a lot of fun. Like जितना आपने video में fun देखा है, real life में हम खीकी करके पागलों की तरह हंस रहे थे. I don't want anyone calling her any names. There is no animosity or beef between us. Hopefully I wish to run into her someday at an event, and I wish to hug her. मेरी तरफ से कोई hard feelings, कोई grudges नहीं है जो मैं मन में लेके बैठी हूँ. I'll let them all go. And yeah, that is it for this topic. I got a lot of questions on this, and जितने भी जिस tone में जो question थे मैंने सबको answer करने की कोशिश की है. And yeah, Quackro is no more. I just wanted to say it out loud. It is difficult grieving the loss of a best friend, and I'm sure it is for her as well. But I also know that we both are strong women, strong girls, strong content creators, and we will get past this. Maybe she has. I haven't talked to her, and so yeah, I will get past this. And let's move on to the next topic and the next makeup step. And guys, I think I'm gonna take this off because I don't know, ये थोड़ा tight है and मेरा सिर दर्द होने लगा है. कुछ questions आए थे asking कि ईशान की health कैसी है, because गोवा में हम लोग गिर गए थे. उसका यहाँ कंधे पे fracture हो गया था, and अभी भी वो heal कर रहा है. Like वो नहीं उठा पा रहा अपना हाथ ठीक से, एंड यू नो ही इज़ हैविंग सम ट्रबल एंड डिफिकल्टीज. जबकि 1 महीना होने वाला है हमारे एक्सीडेंट को. मुझे खरोचे आई थी, कहीं कहीं पे डीप आई थी, कहीं कहीं पे हल्की फुल्की आई थी, बट देव ऑल हील्ड, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज उसकी भी जितनी चोटें वगैरह थी ना वो सब ठीक हो गई है. जस्ट फ्रैक्चर का बाकी है. इवन उसका जो यहाँ पे कट था आई के पास वो भी हील हो गया है. सो मैं पहले बता रही हूँ, ऐसी कोई उम्मीद प्लीज़ हमसे मत लगाइएगा. ऐसी कोई अभी प्लानिंग नहीं है. एंड एक ये भी क्वेश्चन आया था कि हैव यू एवर आस्क्ड ईशान कि व्हाट आर वी एंड आगे क्या ये वो, विच आई हैवंट. आई डोंट really care about asking that to him. I know that he is a very like loyal and serious person, so मेरे मन में ऐसे कुछ ख्याल नहीं आया कि मुझे पूछना पड़े. I would say that we both are pretty in it. Like I don't feel like we are just having fun or we're just exploring anymore. It is getting somewhere, and yeah, that's about it. अभी कुछ होगा, जब होगा तब मैं बता दूंगी, बट अभी कुछ नहीं हो रहा है. Also because I've said कि मेरे को शादी नहीं करनी है 1-2 साल पहले. उस पर भी क्वेश्चन था कि what are your views now. Now I feel like approaching 30, like I will be 30 next year, and it's not to say कि 30 के बाद शादी करना is a हवा. I don't feel like कि एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट वी women do have a biological clock जिसका आपको ध्यान रखना है. लाइक इफ़ यू वांट टू हैव किड्स इन फ्यूचर, बट थैंक्स टू साइंस एंड एग फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी जो आजकल IVF और ये सब आ गया है, इसकी वजह से आई फील लाइक बहुत सारी चीज़ें फॉर अस वुमेन आसान हो गई हैं. लाइक वी कैन गेट आर एग्स फ्रीज एंड एवरीथिंग. सो अब कोई प्रेशर ऐसा है नहीं. आई डोंट वांट टू फ्रीज माई एग्स एज ऑफ येट. If I do decide to get married, one of the biggest things जिस पे I think compromise लड़के वाली side को करना पड़ेगा is that I won't be giving birth, you know. I don't want those kind of genes. So adoption is the only thing that अगर मेरे को बच्चे आगे लाइफ में चाहिए होंगे, I am really willing to adopt a kid and you know उसकी लाइफ को बनाना. जो existing इतने सारे orphan kids हैं उनमें से अगर एक की भी लाइफ आप बना सको, I think that would be great. So और लोग पैदा करने की ज़रूरत नहीं है. वी डू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अपना खून, अपना ये, अपना वो, अपना वंश. मेरे को ऐसी चीज़ें बहुत इरिटेटिंग लगती हैं. सो आई जस्ट फील लाइक कि आगे जाके समवेयर डाउन द लाइन इफ़ आई
feel the need to, I will take steps accordingly. Right now I have a very big loan of this house on my head, so मेरी प्रायोरिटी वो है कि मुझे काम करना है, मुझे और लाइफ में बढ़ना है, कमाना है, एंड अपने फैमिली का ध्यान रखना है. सो आई लाइक वेयर थिंग्स आर राइट नाउ एंड आई डोंट वांट देम टू चेंज फॉर लाइक अनदर मे बी 2 years आई थिंक. सो आई पर्सनली फील लाइक ऐसा कुछ है नहीं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज हम रोज़ काम करते हैं साथ में. वो कोलैब की कुछ बात कर रहा होता है, कुछ ना कुछ काम की बात होती रहती है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग टाइम एक दूसरे के लिए नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज काम के बहाने या किसी बहाने हम मिल ही लेते हैं. एंड देन जब वो काम की वगैरह बातें ख़त्म हो जाती हैं, देन हम नॉर्मल अपनी बातें कर लेते हैं. सो दैट इज़ वेयर वेयर एट, एंड इसीलिए आई थिंक स्मूथली जा पा रहा है, बिकॉज जो बिजी स्केड्यूल है कहीं ना कहीं जाके हमारे मिल जाते हैं. एंड क्योंकि हम साथ में काम करते हैं तो एक कम्युनिकेशन बना रहता है, एंड वी टॉक डेली. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी वर्किंग विद हिम एक्चुअली, बिकॉज लाइफ बिन ईजी, वर्क लाइफ हैज़ बिन रियली रियली ईजी. जो लोग हमको कॉर्नर करते हैं, जिनको आप शिट पीपल कह रहे हो अपने क्वेश्चन में, आई फील लाइक इस इंडस्ट्री में ऐसे काफ़ी लोग हैं. लाइक मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँगी तो इवन इन लाइक पर्सनल लाइफ या अगर आप प्रोफेशनल लाइफ भी देखो, तो मैं इस इंडस्ट्री में जब घुसी थी ना, आई हैड अ नॉर्मल आइडिया ऑफ कि ओके लोग ऐसे होंगे, या कोई लोग थोड़े शेडी हो सकते हैं, कोई लोग हाँ हो सकते हैं कि मतलब दे हैव नथिंग इन कॉमन विद यू, यू नेवर मेट दैम, यू नेवर इवन नो ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, एंड वो आपके फटे में टांग अड़ाना शुरू हो जाएंगे. एंड सम पीपल हैव ओपिनियंस ऑन एनी एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स फाइन. पीपल आर entitled टू देयर ओपिनियन. आई डोंट हैव any problem with it. Like even if people talk about me or are sweet to me and talk bad about me behind my back, I feel I don't have a problem with it. Really. Like पहले मुझे लगता था, पहले भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे ये लगता था कि why are you doing this kind of behavior, because मेरे मेरे मन में that behavior is so weird. Like it's okay to not like a person and then पीठ पीछे उसके बारे में थोड़ा बोलना कि ये ऐसी है वैसी है, but it is a completely different ball game altogether when you hate a person with a passion, या फिर you are just stalking them. Like there are some people I know in this industry who for sure I know they don't like me, बट मैं जैसे स्टोरी डालूंगी सबसे ऊपर उनका नाम मुझे फ्लैश होता दिखेगा, एंड आई एम लाइक यू डोंट इवन लाइक मी, व्हाई आर यू वॉचिंग माई स्टोरीज. एंड देन आई स्लोली अंडरस्टूड कि दैट इज टू कीप अप विद वॉट आई एम डूइंग. एक दूसरे को अपनी थोड़ी ऐसे पंचायती बना के इन्फॉर्म करना कि देखो ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, DMs भेजना एंड लोगों को डिस्कस करना. एंड इफ यू आर अबाउट दैट लाइफ, गुड फॉर यू, बट I am no longer that kind of a person who wishes to discuss people. Be sweet to me and still talk bad about me, bitch about me, gossip about me. You are more than welcome to do so, as long as I am running in your mind, I'm fine with it. And I feel like life may be the person who has asked me this question. I feel like आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि your presence and what you do has such an impact that people जो आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते वो भी आपके बारे में बात कर रहे हैं. लाइक व्हाट डज दैट से about you and your power, the power of your actions, the power of your पर्सनैलिटी एंड यू एज अ पर्सन. बिकॉज मैं वाइब्स बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ, सो आई कम टू नो कि कौन मेरे मुंह पे फेक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. तो देन मैं भी उनसे उसी सरफेस लेवल की हाई हेलो एंड आई लव योर कंटेंट बना के रखती हूँ. एंड आई डोंट गेट टू मच इन टू द फ्रेंडशिप एंड सखी साइड ऑफ इट. आई डोंट वॉन्ट दैट. सोशल मीडिया फ्रेंडशिप्स मुझे अब नहीं चाहिए, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट. आई जस्ट से माई हाई हेलो, आई स्माइल एंड आई एम कॉर्डियल विद पीपल, एंड दैट इज अबाउट इट. आई डोंट नो वाई पीपल आर सो लाइक, मेरे को DM भी आए थे एंड ये Q&A में भी आ गया. आई डोंट नो वेयर दिस came from ki why wasn't I invited to her bachelorette party, and I think that is because of a simple reason that Mridula and I are not best friends. Mridula and I are not close enough for her to invite me to a bachelorette party. I can assure you that if things were the other way around and मेरी शादी या जो भी हो रहा होता and मैं अगर किसी बैचलरेट ट्रिप पे जाती या कहीं जाती, I wouldn't have thought of कि मैं मृदुल को बुलाऊं, because we don't share our feelings, we don't talk about a lot of things. जब हमें कोलैब करना होता है या एक दूसरे की वीडियो में फीचर होना होता है, जब मैं मुंबई आ रही होती हूँ या वो दिल्ली आ रही होती है, yes we talk. It is safe to say कि मतलब हम लोग ना बहुत सोचने लगते हैं कि सामने वाला पर्सन ऑफेंड हो जाएगा कि मैंने उसको अपना फ्रेंड नहीं बोला या ये नहीं बोला वो नहीं बोला. बट इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट यूजिंग द टर्म्स एक्वेंटेंसेज, रिलेटिव, बहुत सारे टर्म्स आप दे सकते हो लोगों को अपनी लाइफ में, बहुत सारी पोजिशंस दे सकते हो. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू कॉल एवरी वन योर फ्रेंड.
And yeah, we are acquaintances, we work in the same industry. I like her, I don't have any problem with her, I hope she doesn't with me. So that is about it. So I don't know कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि सारे क्रिएटर्स इन्वाइटेड थे. नो, सारे क्रिएटर्स नहीं थे इन्वाइटेड. आई नो दैट गोपाली एंड जानवी मृदुल से ज़्यादा बात करते हैं, दे हैंग आउट मोर. नाउ दे लिव इन मुंबई, तो ज़्यादा उन लोगों का मेल जोल होता है. आई एम ऑल द वे अप हियर इन दिल्ली नॉर्थ में. मेरे दिमाग में थॉट आया भी नहीं जब तक मुझे मैसेज या डीएम नहीं आया था कि आप क्यों नहीं गए वहाँ. मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि वेयर डिड इट कम फ्रॉम, बिकॉज वी आर नॉट दैट क्लोज कि हम एक दूसरे की बैचलरेट या शादी वगैरह अटेंड करें. साक्षी, टू योर क्वेश्चन, आई वांट टू से दैट इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल टू हैव नो फ्रेंड्स. आई नो हाउ इट फील्स. इट कैन फील वेरी लोनली बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दैट फेज एंड इट इज ओके एज लॉन्ग एज you deal with it independently, emotionally. Like you don't want to make friends for the hell of it के मेरे 4 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, एक नंबर के लिए नहीं. यू रियली वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन, या यू रियली एन्जॉय देयर कंपनी. फ्रेंड्स इसलिए होने चाहिए. फ्रेंड्स एक टिक मार्क चेकलिस्ट टिक करने के लिए नहीं होने चाहिए कि मेरे पास आज 5 फ्रेंड्स हैं. ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मूवीज और ये सब ने बना दिया है ना. लाइक टेक इट फ्रॉम अ पर्सन जिसके बहुत बहुत ही छोटा फ्रेंड सर्कल है एंड जो ऑनलाइन है भी नहीं. मतलब मैं फीचर ही नहीं करना पसंद करती लोगों को. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओके विद योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन मेक फ्रेंड्स बिकॉज यू वॉन्ट टू, नॉट बिकॉज यू नीड पीपल इन योर लाइफ एंड उनके बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे. सो अगर आपके अभी नहीं बने, अभी बहुत लंबी लाइफ बाकी है यार. एंड एट द सेम टाइम जो मैंने बोला अभी, इट्स ओके टू हैव एक्वेंटेंसेज एंड वर्क फ्रेंड्स एंड ये सब. पक्की यारी होना ज़रूरी नहीं है. जब होगी तब होगी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी, ज़रूर होगी. बट अगर अभी नहीं है तो ये एक फेज है लाइफ का. इट्स फाइन. नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द क्रिएटर इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग. सो हाउ कैन अ स्मॉल क्रिएटर ग्रो? आई फील लाइक समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इज मेकिंग शॉर्ट्स. आई फील लाइक बहुत कम टाइम लगता है शॉर्ट्स बनाने में एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक दैम. एंड आप कोई भी रैंडम टॉपिक्स है इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है बिकॉज यू नेवर नो क्या चीज़ कब वायरल हो जाए, कब चल जाए. शॉर्ट्स, रील्स ये सब चल रहे हैं तो वो बनाओ एंड उससे रीच आपकी अच्छी हो जाएगी. एंड आई होपफुली आंसर्ड योर क्वेश्चन वेल. आई रियली वॉजंट फीलिंग इट, लाइक नॉट फीलिंग इट इन द सेंस ऑफ, मैंने बोला ना शुरू में वीडियो के दैट मैंने एक चीज़ छुपाई, वो एड्रेस करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी. एंड आई ऑल्सो मेड सम प्रोमिसेस. उस चक्कर में फिर मैं और चीज़ें शेयर करने की एक आदत होती है. जब आप वो आदत बीच में तोड़ो तो आपका फिर कुछ शेयर करने का मन नहीं करता. एंड दैट इज़ बिकॉज यू आर जस्ट फेड अप ऑफ एक्सपोजिंग योर लाइफ. लाइक एज क्रिएटर्स आई ऑलवेज से, जब मैं अपने फ्रेंड से भी कभी बात कर रही होती हूँ ना, कि इट्स समटाइम्स द ओनली कॉन ऑफ दिस जॉब जो व्लॉग करते हैं स्पेशली इज दैट यू हैव टू सेल योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस एंड मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग एंड सेलेबल. एंड मुझे वो वाली चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी. सो आई वॉन्टेड टू टेक अ वेरी बिग ब्रेक. एंड ये पूरा 2023 आई हैव ट्राइड दैट कि मैं कम व्लॉग करूँ एंड सरफेस लेवल कॉन्टेंट ज़्यादा बनाऊँ. एंड आई वॉज ट्राइंग समथिंग विद इट. दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट दैट आई वॉन्टेड टू रन एंड किया मैंने, मज़ा आया. बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो मुझे अपनी बातें शेयर करके आप लोगों से मिलती थी. सो दैट इज़ वेयर आई एम एट. आई फील लाइक आई डिड इट, आई एम ओके विद इट. आई हैव अ फ्यू रिग्रेट्स अबाउट इट. बट व्लॉग्स इसीलिए नहीं आए बिकॉज आई जस्ट वॉजेंट इन अ प्लेस मेंटली टू शेयर वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू. एवरी डे देर वॉज सम हेल्थ स्केयर, देर वॉज समथिंग हैपनिंग इन पर्सनल फ्रंट के मुझे मन नहीं किया. एंड आई ऑल्सो थॉट कि क्योंकि मैं एक जब आपके पास घर, पैसा और चीज़ें लेने की क्षमता आ जाती है, देन पीपल जस्ट डीह्यूमनाइज यू इन सम वे. लाइक अगर आप अपनी प्रॉब्लम जाके लोगों को बताओगे तो वो हमेशा ही बोलेंगे कि ये किस बात के लिए रो रही है, इसके पास इतना कुछ है, लाइक इतना कुछ है, इसके लिए इसको ग्रेटफुल होना चाहिए. एंड आई एम ग्रेटफुल. बट वो फिर आपकी प्रॉब्लम्स को ना बिल्कुल ही कांटा मार देते कि ये मैटर नहीं करती बिकॉज तुम्हारे पास ये है, तुमने ये अचीव कर लिया है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम डजंट मैटर. द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो जो हमने एड्रेस किया, उसके बाद मेरे सिर से और कंधों से एक ऐसा भार निकला है कि आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी लाइट. सो नाउ आई एम रेडी टू शेयर एवरीथिंग एंड आई होप कि आप लोग अभी तक हो यहाँ पे जो मेरे ओजी क्वर्की स्क्वाड है मुझे देखने के लिए. इफ़ यू आर देयर नीचे कमेंट करना. ऑलराइट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव विच इज़ क्या हम एक दूसरे को पे करते हैं कोलैब्स करने के लिए? आई डोंट थिंक सो. आई रियली डोंट थिंक सो. आई डोंट नो कि वो बड़े लेवल पे क्या होता है जो 10 मिलियन वाली फॉलोइंग होती है. बट आई कैन फॉर श्योर टेल यू कि जितने क्रिएटर्स के साथ मैंने आज तक कोलैब किया, they've always been very mutual and mutual liking के लिए. And I don't feel like ऐसा कभी भी हुआ है कि हमने कोलैब किया हो एक दूसरे को पे करके. इट्स नेवर दैट वे. इट्स ऑलवेज बिकॉज वी वॉन्ट टू कोलैब. सो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि वी हैव पेड ईच अदर. बट आई कांट आंसर फॉर एवरी वन, बट I don't think that is the case. Alright, next topic is family and health.
सबसे पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस, बिकॉज मेरी मॉम का सनेटिक एरिया का मैंने आप लोगों को बताया था, सो आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट, एंड मैं थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरा आई मेकअप भी देख सको एंड एन्जॉय कर सको. सो मॉम का सनेटिक एरिया इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल एंड आई एम रियली हैप्पी टू रिपोर्ट इट बैक टू यू गाइज, बिकॉज वी टुक हर फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एंड उन्होंने आई थिंक अब 2-2.5 साल से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रही है मम्मी, एंड उसकी वजह से इट हैज़ हेल्प्ड हर अ लॉट. एंड अब मम्मी धूप में जाती है तो उनको ऐसे रैशेज़ वगैरह नहीं निकलते हैं, टच वुड, एंड या शी इज़ बीन doing really well, which is a good thing. And but पेरेंट्स की हेल्थ के मामले में ना और बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, लाइक माई डैड, माई मॉम, रवि की मेंटल हेल्थ, उसकी दवाइयाँ, एवरीवन, लाइक मेरी फैमिली में सब लोग ऐसे 10-10 गोलियाँ ले रहे हैं ना अपनी हेल्थ को लेके. इट इज़ वेरी स्केरी. इट्स ओके, वी आर होपफुल, वी वांट टू गेट बेटर एट इट, एंड तभी मैंने अपनी एक हेल्दी डाइट जर्नी भी स्टार्ट की थी, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू मेक अमेंड्स, एंड माई मॉम हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इट. सो हम पूरी एज अ फैमिली वी आर ऑन अ हेल्थ जर्नी. माई मॉम डज योगा, माई मॉम गोज़ फॉर अ वॉक, माई डैड गोज़ फॉर अ वॉक. सब अपने एक फिटनेस जर्नी पे स्टार्ट हो चुके हैं, एंड वी रियली वॉन्ट कि रवि को भी हम थोड़ा इसमें इंक्लूड करें, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट उसका भी वेट काफ़ी बढ़ रहा है. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू फैट शेम माई ब्रदर, बट इट इज़ अ वेरी बिग डील जब कोई स्पेशल चाइल्ड थोड़ा हैवी हो जाता है, एंड जब उनके मेल्टडाउन्स होते हैं तो उनको टैकल करना एंड संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है फॉर अ फैमिली मेम्बर. सो या उसके सारे वाइटल्स ठीक है, लाइक उसके टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है. रवि इज़ द मोस्ट हेल्दी पर्सन अमंगस्ट अस. एंड समवन ऑल्सो आस्क्ड अबाउट माई नमनेस ऑफ द चिन एरिया. ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हाफ ईयरली में आई थिंक आई टोल्ड यू गाइज दैट काफ़ी हद तक वापस आ गया, एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट यू गाइज दैट माई चिन इज़ फुल्ली एक्टिव नाउ. लाइक यहाँ पे टच करती तो मुझे फील होता है. इट्स जस्ट दैट ये जो लिप का एरिया है ना, ये और ये नीचे का हल्का सा ये वाला पूरा एरिया अभी भी मेरे को सुन लगता है. सो व्हेन आई एम टचिंग इट यहाँ पे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, लाइक चूटी मारूँ कुछ करूँ कुछ फील नहीं होता है. एंड यू नो व्हाट, कभी कभी इट इज़ वेरी टफ बिकॉज मैं खा रही होती हूँ एंड ये लिप तो फुर्ती से आगे जब मैं चबा रही होती हूँ बढ़ जाता है. ये वाला मेरा आई कॉल इट माई लेजी लिप, बिकॉज ये थोड़ा 2 सेकेंड बाद मूव होता है, एंड बोलने में भी तभी मेरी ये चीज़ ना ज़्यादा खिंचती है. सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट कभी कभी मैं खा रही होती हूँ एंड ये लिप मैं करके काट लेती हूँ, लाइक चबाते चबाते, एंड अब मेरे यहाँ अंदर ऐसा जख्म हो गया है बिकॉज मैं हमेशा खाते खाते यहाँ काट लेती हूँ, ये ठीक से मूव ही नहीं हो पाता. आई ऑल्सो हैव दिस वन मोर थिंग जो कि मैं उसका नाम पूरे अच्छी तरह से बताना चाहती थी, बिकॉज माई डेंटिस्ट टोल्ड मी इट इज़ TMJ. इट इज़ कॉल्ड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन, विच इज़ लाइक डिसफंक्शन ऑफ योर जॉ. ऊपर वाला जॉ और नीचे वाला जॉ ना टेढ़े हो जाते हैं, एंड जब आप खाते हो तो आपकी कट कट आवाज़ आती है, लाइक विद एवरी बाइट. जब मेरे को चू करना है, जब मेरे को मुंह खोलना है, एक कट करके आवाज़ आती है. रुको, लेट मी कम क्लोज टू द कैमरा एंड इट इज़ गोना बी अ लिटिल ASMR टाइप्स का, बट आई होप कि ये कैमरा कैच कर पाएगा साउंड. रुको, कैन यू लिसन? दिस इज़ द साउंड दैट कम्स आउट ऑफ माई जॉ. एंड ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे डेंटिस्ट या किसी सर्जन से जाके फिगर आउट करनी पड़ेगी, एंड वो मेरे जॉ को आई थिंक ठोक ठाक के ठीक करेंगे, सही पोजीशन में लाएंगे, या मे बी आई हैव टू गेट ब्रेसेस, आई डोंट नो, बट इट इज़ अ बिग डील. लाइक खाना खाने में करने में ओह नो, वो दर्द फिर सिर तक पहुंच जाता है. सो ये TMJ भी मेरे को काफ़ी टाइम से था. मैंने जब अभी विजडम टूथ का अप्रैल मार्च में कराया था अपना, उस टाइम पे मेरे को मेरे डेंटिस्ट ने बताया कि ये भी इशू है आपका. जब आप सारे अपने विजडम टूथ निकलवा लोगे एंड वो हील हो जाएंगे, उसके बाद यू हैव टू डू समथिंग अबाउट TMJ, एंड लेट्स सी के वो कैसे ट्रीट होता है. इफ़ यू गाइज हैव एनी आइडिया एंड आप कोई डेंटिस्ट या सर्जन कोई हो जो इसमें एक्सपर्टीज रखता है, प्लीज़ साउंड ऑफ बिलो. ओके, द आईज आर काइंड ऑफ डन. मुझे सिर्फ मस्कारा लगाना रहता है यहाँ पे, बट आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू जापान. एक्चुअली 3 ही है, बट आई वॉन्ट टू प्ले अ फुटेज फॉर यू गाइज, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये क्वेश्चन आया है. हाउ डू यू गेट जापान वीज़ा एंड वॉट वॉज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट इट? सो एज वी ऑल नो, एंड जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है जापान के, इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन, एंड दैट प्रोसेस वॉज रियली नाइस, बिकॉज जहाँ मैं गई थी अपनी फाइल सबमिट करने, वो जो काउंटर पे बैठी थी वो मेरी सब्सक्राइबर निकली. शी ऑल्सो क्लिक्ड अ फोटो विद मी, दैट्स अ सेपरेट केस. बट या कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती
होती है, आई थिंक आई एम गोना मेक अ शॉर्ट ऑन इट बिकॉज वो ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा एंड यू कैन जस्ट फॉरवर्ड इट टू पीपल जिनको नीड है उसकी. बट द रिएक्शन, आई एम रियली रियली हैप्पी. मेरे को ना जापान के फर्स्ट व्लॉग में डालना था, बट क्योंकि वो व्लॉग पहले से इतना लंबा हो गया था, सो आई थॉट कि मैं बाद में कभी आप लोगों को दिखाऊंगी या फिर मैं इंस्टाग्राम में कभी स्टोरी पे अपलोड कर लूँगी. बट सिंस आई गॉट दिस क्वेश्चन, आई विल बी अप्लाइंग माई मस्कारा एंड आई विल प्ले अ फुटेज बिकॉज मैंने वो रिकॉर्ड की थी व्हेन वी गॉट द वीज़ा. पूरा पोस्ट होके आया था हमारे पास एंड दैट वाज लाइक अ रियली रियली स्पेशल मोमेंट जो मेरे पास अभी है. सो आई एम गोना प्ले दैट फुटेज एंड आई एम गोना बी राइट बैक आफ्टर आई अप्लाई माई मस्कारा. गुड मॉर्निंग. हेलो, एक सेकंड साइड में खड़ा हो जाएगा, मेरे को इम्पोर्टेंट बात करनी है. आ रही है आवाज? देख तो ले यार इधर. वीजा आ गया. We are going to Japan. 90 days multiple entry. नहीं, हमें जाना तो 10 दिन के लिए ही है. Are you happy? हम दोनों के वीजा आ गए हैं एंड वी आर गोइंग टू जापान. प्लीज आज घर आ जा, मेरे को फाइनल बुकिंग्स करनी है अब. तो डेट तक आ जा. ओके, वील हैव लंच टुगेदर. भेज रही. चल बाय, सी यू. दैट वॉज सच अ नाइस वीडियो. लाइक मैं जब भी सैड हो रही होती हूँ मैं वो वीडियो ज़रूर देखती हूँ बिकॉज आई जस्ट रेमिनिस दैट टाइम. मैं बिल्कुल उस जोन में पहुँच जाती हूँ एंड वी जस्ट गॉट द वीज़ा एंड वी वर फुल ऑफ होप्स कि अब तो जापान जाएंगे, पक्का हो गया ये वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज जापान का बजट. या 2-3 क्वेश्चन इसी के आए हैं कि मैंने जापान की ट्रिप कितने में की. नाउ अपार्ट फ्रॉम द बैग दैट आई बॉट विच वॉज अ टोटली लाइक अननेसेसरी परचेज. आई डोंट थिंक सबको जापान जाके कोई लग्जरी बैग लेना होगा. उसको हटा के आई थिंक 4 लाख में वेरी इजीली यू कैन डू अ जापान ट्रिप फॉर 2. अगर मैं अकेली गई होती मे बी और कम लगता फ्लाइट्स का बिकॉज आई थिंक दोनों का मिला के 4 लाख इज मोर देन इनफ फॉर अ जापान ट्रिप. जापान इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव countries to travel to and to live in, so it is going to be expensive. and मैंने सोचा था कि 7-8 लाख लग जाएंगे, but yeah 4 लाख ही लगे. and हमने बहुत ईजी लाइक मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा कम्यूट में हमने नहीं खर्चा, बहुत ज़्यादा खाने में हमने नहीं खर्चा. हमने अलग अलग लोकल जगह जाके भी ट्राई किया खाना. सो जितने भी एक्सपीरियंसेस किए हमने बहुत लोकली ट्रैवल किया विच वॉज अ ग्रेट थिंग. लाइक वी डिड नॉट बाय अ लॉट ऑफ टिकट्स. आई फील लाइक एक्सपीरियंसेस में भी वी वेंट टू टीम लैब्स एंड मैं डिज्नीलैंड वगैरह या यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं गई. इवन तो मेरा मन है बट मेरा किसी और लोकेशन के यूनिवर्सल स्टूडियो और किसी और देश की लोकेशन के डिज्नीलैंड जाने का मन है, नॉट ऑफ जापान. सो वो जब होगा तब मैं ज़रूर जाऊंगी. बट आई वॉज रियली श्योर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. लाइक आई रियली वॉन्टेड टू डू द ओसाका फूड टूर एंड ट्राई डिफरेंट क्यूजीन्स एंड एवरीथिंग. लाइक वहाँ की जो लोकल स्ट्रीट डिशेज होती हैं. नारा जाना था डियर्स से खेलने, तो वो वाले एक्सपीरियंसेस में वी हैव स्पेंट एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि हमने सस्ते में ये ट्रिप निपटा लिया. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल मीडिया एंड डबल स्टैंडर्ड्स. आई हैव 3-4 क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट. व्हाट डू यू थिंक ऑफ इन्फ्लुएंसर्स यूजिंग फेक डिप्रेशन स्टोरीज टू गेन सिंपैथी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ एंड आई डोंट नो हु थिंक्स लाइक दैट कि अगर कोई क्रिएटर आके यू नो अपने मन की कोई बात बता रहा है, वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहा है, तो दे आर मेकिंग अ फेक स्टोरी फॉर व्यूज़ एंड सिंपैथी. इफ समवन वांट्स व्यूज़ एंड सिंपैथी देर आर अ लॉट ऑफ वेज, ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ वेज टू गेन दैट. एंड किसी को अपनी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ाने का शौक नहीं होता सोशल मीडिया पे आके. इट इज़ ओनली व्हेन अ क्रिएटर फील्स कंफर्टेबल इनफ टू गो ऑनलाइन, कम ऑन अ कैमरा एंड यू नो शेयर देम विद देयर ऑडियंस. लाइक उनको एक भरोसा होता है अपनी ऑडियंस पे, एक मैच्योरिटी लेवल पे, IQ पे, EQ पे, कि दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. एंड आई फील लाइक जो लोग ऐसा सोचते हैं, आई जज देम. मेरे को जो लोग जज करते हैं ऐसे, आई ऑल्सो जज दैम. आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन पर्सनली बट आई डू फील लाइक बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर नाउ हेयर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इट एंड ऑल्सो मेंटल हेल्थ, depression, anxiety, words like these,
these are not just words, they have meanings. People live with this condition in their life, throughout their life, every day, every second. Do you know how hard it is to be called as lazy at work, कि तुम वर्क नहीं कर रहे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, एंड द पर्सन हु इज डिप्रेस्ड इज फाइंडिंग द एक्शन ऑफ कंबल हटा के उठना, सुसु करने जाना, नहाना, मुंह धोना, ये डेली के काम करने में उसको मौत आ रही है. मतलब दे डोंट वॉन्ट टू वेक अप द नेक्स्ट डे एंड यू कॉलिंग देम लेजी बिकॉज वो वर्क नहीं कर पा रहे, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे टू लुक सेक्सी और अ सर्टन वे जिससे आप खुश होगे. Like, how crazy is that? So mental health is not a joke. If someone uses these terms, and कोई भी, चाहे मेरे को घंटा पसंद ना हो बंदा, पर अगर आके वो बोलेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, I will not be the kind of person who will be all judgmental and snooty as if this is for views. But one thing that I would like to say is that a few terms या a few things जो कि डायग्नोज हो या आपके किसी थेरेपिस्ट ने या साइकाइट्रिस्ट ने बताया हो, उसके बाद आप आके बोलो, दैट इज बेटर. बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल यूज द वर्ड लूजली. आई वुडंट से कि वो सोशल मीडिया सिंपथी के लिए करते हैं, मे बी दे ट्रूली बिलीव दैट उनको वो प्रॉब्लम है, बट टर्म्स लाइक OCD, टर्म्स लाइक डिप्रेशन, क्लिनिकली डिप्रेस्ड, एंड ये सारी चीज़ें यू नीड टू बी डायग्नोस्ड फॉर दीज थिंग्स. लाइक यू कांट यूज दैम सो लूजली just for the hell of it. So उस चीज़ से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, to be really honest with you guys. But still, अगर कोई मेरे को आके ये बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो I will believe that person. I won't be the sort of person जो हर चीज़ में नुक्स निकाले, हर चीज़ में जज करने लगे. I want to be the sort of person who is a positive person, who chooses to see the good in every situation rather than नुक्स निकालना हर चीज़ में. एंड स्पेशली इन केस ऑफ मेंटल हेल्थ. बाकी चीज़ों के सिनेरियो में फिर भी मैं बिलीव कर सकती हूँ, बट अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ओपन अप हो रहा है, आई विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर दैट पर्सन, एंड आई विल नेवर बी ऑन दैट साइड ऑफ द रिवर वेयर पीपल आर लाइक, you are lying. How come every YouTuber has a rags to riches story? I mean, luxuries के लिए पैसे ना होना and basic चीज़ों के लिए पैसे ना होने में बहुत बहुत बड़ा difference है. So when I tell you guys that my family was under debt, we were under a debt of 10 to 15 lakh rupees. Were under that debt. मेरे पापा का सिबिल स्कोर खराब हो गया था, उनको कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं दे रहा था. मेरे पापा की जॉब नहीं थी, वो काफ़ी टाइम तक घर पे बिना जॉब के थे. वी वर प्रिविलेज इनफ कि एटलीस्ट मम्मी के पास गोल्ड तो था जो उनको अपने मायके से मिला था, या ओवर द ईयर्स उन्होंने जमा करके अपना कुछ बनाया, बट दैट वाज आल्सो नॉट दैट मच. उसके जाने के बाद भी वी बोरोड मनी फ्रॉम रिलेटिव्स, या कहीं ना कहीं से हाथ पैर मारना, पापा के फ्रेंड से, मम्मी के फ्रेंड से, कहीं से, ताकि हम एक महीना और काट सके. दैट इज़ द काइंड ऑफ लैक ऑफ मनी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट आजकल जो क्रिएटर्स है, आई हैव सीन दिस, इट इज़ एक्सट्रीमली कन्वीनियंट टू से कि मेरे पास पैसा नहीं था, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, एंड नाउ आई हैव मेड इट ऑन माई ओन एंड ये वो. व्हेन यू क्लियरली नो दैट जब तुम्हें अपना चैनल स्टार्ट करना था, यू ऑलरेडी हैड दैट DSLR, टुक दैट ट्रिप टू दुबई और टुक दैट ट्रिप टू यूरोप व्हेन यू वर 6 or 10, देन हाउ कैन यू से दैट आप पुअर थे? आई कैन अंडरस्टैंड सम स्टोरीज वेयर आप पहले अमीर थे, फिर गरीब थे, फिर दोबारा अपने बलबूते पे अमीर हुए, या फाइनेंशियली स्टेबल हुए. आई अप्रिशिएट दैट. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे पास एक चॉइस थी वेदर टू इन्वेस्ट 8 to 10,000 rupees फॉर माई विजडम टूथ, और टू गिव दैट 8 to 10,000 rupees and just divide them for groceries, for electricity या water bill, या फॉर रेंट ऑफ दैट हाउस जो आपने सबसे पहले शुरू में देखा था. बट इफ़ यू फाइंड अ क्रिएटर जिसकी आपने शुरू से स्टोरी फॉलो की हो, उनका घर भी वैसा नहीं था जैसे मेरा था. यू हैड द लग्जरी ऑफ पेइंग रेंट एंड ऑल्सो गोइंग टू एन इंटरनेशनल वेकेशन व्हेन यू वर 7 or 8. I don't consider you as poor, bro. I don't consider your story from rags to riches. That is absolute bullshit. And I will call a spade a spade. बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं, बट जिस बंदे ने देखा होता है कि पैसे की कमी क्या होती है, उसको गुस्सा आता है अंदर से कि इतना कन्वीनियंटली वो चीज़ यूज़ की जा रही है. So yeah, I feel strongly about it and I will not mum my words about it. And audience is no fool. आप लोग कोई बुद्धू लोग नहीं हो. आप लोग पुरानी वीडियोस में ट्रैक करके देख सकते हो किसकी क्या हालत थी, कौन कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा था.
मेरी रैग्स टू रिचेस की स्टोरी के बारे में ना मैं अब बात भी नहीं करती इतनी, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक वट एवर आई टोल्ड यू गाइज ऑन माई चैनल, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे आसपास फ्रेंड से बात की जाए, दे नो वॉट हैपन, दे नो एंड दे विल बी एबल टू से ऑन योर फेस की दिस इज वॉट अदिति वेंट थ्रू. एंड सम पीपल माइट से कि क्वर्की ना बिटर हो रही है, क्वर्की जेलस हो रही है कि उसको ये नहीं मिला लाइफ में तो बाकियों से वो जल रही है या कुछ कर रही है. आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स हियर. सम पीपल जस्ट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट उनकी कभी एक अच्छी लाइफ थी भी. And that is what I have a problem with. Like, I'm not talking about a specific person, but I have seen some people here and there on social media जो इस चीज़ को बहुत ही अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं, which is totally wrong. It is unfair for people जिन्होंने सच में वो problems लाइफ में झेली हैं, and I speak for myself here. So yeah, that's that. The term body positivity is used to advocate for unhealthy obesity, and what are your thoughts on it? My thoughts on it is that, yeah, to some extent I feel like this is a very controversial topic, because the moment you say something against body positivity, you are termed as a body shamer. But being a mid-sized to fat girl, इस बीच में fluctuate होती हुई myself, I can say that कभी कभी कुछ लोग body positivity को बहुत गलत वे में ले लेते हैं. Like, if your vitals are not good, if your हार्ट, लिवर और ओवरीज और एनीथिंग लाइक आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड इट इज़ लाइफ स्टाइल बेस्ड, एंड just being in that state is not body positivity. But I do have to say that if your vitals are, wow, this shade is amazing, if your vitals are low and you need to make some lifestyle changes, then just don't accept where you are at that point of life on the name of body positivity. That is a bad thing to do. For example, मेरे को PCOD हो गया and hormonal issues हो गए, so I won't blame myself and go into that rut of negativity, you know, like मैं अपने आप को करने लग जाऊँ कि ओ अब तो कुछ नहीं हो सकता, and you know मैंने अपने आप का ये हाल कर लिया, and अगर मेरे को कोई आगे आके मेरी बॉडी के बारे में कुछ बोल रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करके और सल्क किए जा रही हूँ, उस नेगेटिव क्लाउड में जा रही हूँ. आई थिंक वो नहीं करना चाहिए. एंड बॉडी पॉजिटिविटी फॉर मी विल मीन दैट अगर मुझे आके कोई मेरी बॉडी के बारे में बोल रहा है, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर इट एंड आई विल से दैट वॉट यूर सेइंग इज़ वेरी मीन, इट्स वेरी रूड, एंड इवन इफ इट्स अ जोक, इट्स नॉट फनी टू मी. क्योंकि कभी कभी लोग बहुत ऐसे बोल देते हैं कि यार जोक था यार, थोड़ा तो सेंस ऑफ ह्यूमर रखो, आई वॉज जस्ट जोकिंग. देन यू कैन से कि वेल इट वॉज नॉट फनी फॉर मी, मेरे को नहीं हंसी आई. प्लीज़ लव योर बॉडी तब भी, बट ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आपको -10 से 0 to 10 to 50 to 100 कभी ना कभी लाना है. गिव योर सेल्फ दैट टाइम, हैव पेशेंस विद योर बॉडी एंड डू व्हाट्स बेस्ट फॉर इट. ड्रेस फॉर इट, eat healthy because you love your body, because you're positive about your body. Exercise daily or once, twice, thrice a week. That is body positivity. Doing stuff that is actually scientifically proven to be right for your body is loving your body, hence it is body positivity. Staying obese, staying super underweight to the point that आपकी health खराब हो रही है, in both cases is not body positivity. Accepting your body in unhealthy lifestyles is not body positivity, and maybe I will get flag for it and कुछ लोग ये point नहीं मेरा समझ पाएंगे, but I feel very strongly about it. Having acne, you know, for example, body positivity is not just about weight. Having acne, so many acne, because of PCOD, but still trying to love myself कि okay, it's okay, I look good. मुझे पता है अभी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, but it's fine, it's okay, I'm working on it. That is body positivity. I'm working on it is body positivity. It's not like जैसा है चलने दो, मर ही जाना है एक दिन. No, दुनिया में आए हो, जियो, करो कुछ अच्छा. दैट इज़ बॉडी पॉजिटिविटी टू मी. एंड आई डोंट नो कितने लोग इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट आज मैं बहुत ही ज़्यादा कलेशी मूड में हूँ, तो मैं अपने मन की सारी बातें बोलना चाहती हूँ. यस, ये वाला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम फाइनली प्लानिंग अ मीट एंड ग्रीट फॉर यू गाइज इन 2024, होपफुली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, वेयर विल बी एबल टू मीट अच्छे वेदर में, एंड इट इज़ गोना बी अ डेली मीट एंड ग्रीट, बट होपफुली विल बी एबल टू मेक इट हैपन इन मुंबई एज वेल. इफ एनी ऑफ मुंबई क्वर्की स्क्वाड इज हियर, प्लीज़ अटेंडेंस लगाओ ताकि मुझे पता चले यू गाइज आर इंटरेस्टेड. बट फाइनली आई थिंक हमने क्या 30,000 सब्सक्राइबर्स तब हिट किए थे जब मैंने फर्स्ट मीटअप किया था, उसके बाद कोई मीटअप नहीं हुआ है, एंड नाउ वेर एट 1.2 मिलियन.
Plans for New Year is that we're having a big rooftop party here. I've already booked the decor people. I've already set the menu कि हम क्या खाने वाले. ऊपर हम थोड़ा barbecue करेंगे. We'll have drinks and we'll just have a good time. हम dance करेंगे and the party starts at 11:30 and party खत्म होगी सुबह कहीं 5-6 बजे जाके and it will be a very safe space here. So I'm really excited for that as well because बाहर जाना travel करना फिर लोग drink कर लेते हैं. I just really don't want people to drive. So here is a safe space जहाँ पे people can just drink and eat and dance and crash. I did not have any regrets in 2023. I feel like maybe one regret if I can find in 2023 is that मैं अपना डेंटिस्ट जिनसे मैंने पहले अपना एक्सट्रैक्शन कराया था, आई फील लाइक अगर मैं रिसर्च करके किसी और के पास जाती मे बी मेरा वो एक्सपीरियंस बेटर होता. बट देन अगेन आई बिलीव इन कर्मा. सो मेरी लाइफ में ये होना लिखा था. लाइक ये वाला सीन दर्द झेलना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था to just settle my karmic accounts and the balance sheet for 2023. So that is one regret. But yeah, उसके अलावा मेरे को इतने जल्दी regrets होते नहीं है. I've been speaking for 2 hours 39 minutes, like 39 से 40 होने वाला है. Thank you so much for watching this video, guys. I feel like a heavy 2-3 year worth of weight has lifted off my chest and some topics that I've addressed in this video आगे इनके बारे में कभी बात नहीं होगी because I'm over them and कुछ topic हम आगे और कुरेदेंगे if needed. So yeah, you guys, let me know आप लोगों को आज की वीडियो ये कैसी लगी and you can also follow me on Instagram if you want to stay updated with me and I will see you guys next year. Bye bye.